العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ دینی اور ملی بہنوں، اس سے پہلے کے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا واو پیش معروف اور واو پیش مجہول۔ واو پیش معروف کو ہم نے پڑھا تھا، واو پیش مجہول کو ہمیں پڑھنا تھا۔ واو پیش معروف کے متعلق واو پیش معروف کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ واو پیش معروف کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ واو پیش مجہول کسے کہتے ہیں۔ تو واو پیش معروف کے متعلق بتایا تھا کہ سین پر پیش ہو اور واو پر الٹا پیش ہو اور واو کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے تو ایسی صورت میں یہ واو معروف، اور اگر واو پر الٹا پیش نہ ہو اور واو کو کھینچ کر زیادہ نہ پڑھا جائے تو اس کو واو پیش معروف کہتے ہیں۔ جیسے سوٹ ہم پڑھتے ہیں، مول پڑھتے ہیں۔ جیسے سوٹ، بوٹ، سٹ نہیں پڑھتے، بٹ نہیں پڑھتے، لٹ نہیں پڑھتے، سوٹ، بوٹ، لوٹ، کوٹ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں مول، تول، سوٹ نہیں پڑھتے، سوٹ، بوٹ۔ تو دیکھیے دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ جو واو پیش معروف ہوتا ہے، واو پیش مجہول ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا زبر کی جانب مائل کر کے پڑھتے ہیں، پورا پیش نہیں پڑھتے۔ جیسے مول نہیں پڑھتے، مول پڑھتے، مول، مول پڑھتے، مول نہیں پڑھتے، مول پڑھتے، مول نہیں پڑھتے۔ تو مول پڑھیں گے تو مجہول ہوگا۔ اگر مول آپ نے پڑھ دیا، مول پڑھ دیا، طول پڑھ دیا، گول پڑھ دیا، کھول پڑھ دیا تو یہ مجہول نہیں، معروف رہے گا۔ لیکن اگر مول، تول، گول، کھول آپ نے پڑھا تو یہ کیا ہوگا؟ معروف نہیں، مجہول ہوگا۔ تو دونوں میں ہم نے بتایا پہلا فرق یہ ہے کہ مجہول معروف میں جو ہے واو پر الٹا پیش ہوتا ہے، واو کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اور مکمل واو پیش کی شکل میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ اور واو پیش معروف مجہول جو ہوتا ہے، واو پر الٹا پیش نہیں ہوتا، اسے کھینچ کر زیادہ نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ زبر کی جانب تھوڑا سا مائل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو قرأت کی زبان میں امالہ بولتے ہیں، قرأت کی زبان میں امالہ بولتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے پڑھا تھا سوٹ، بوٹ، لوٹ، کوٹ، ہوک، کوک، ہوک، ہوک، ٹول، پھول، پھول، دھول، نور، دور، دور، سور، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ یہ معروف تھے۔ ہم کو جو ہے اب مجہول پڑھنا ہے، واو پیش مجہول پڑھنا ہے۔ واو پیش کیا پڑھنا ہے؟ مجہول پڑھنا ہے۔ واو پیش کیا پڑھنا ہے؟ مجہول پڑھنا۔ دیکھیے آپ دونوں میں واو پیش معروف کے دیکھیے، واو لام مثبت واو برابر لام، واو الٹا پیش لو، واو پر یہاں الٹا پیش لگا، اور یہاں پہ مجہول میں جو ہے لام مثبت واو برابر لام واو مثبت تا برابر لوٹ، ایسا ہے۔ اور وہاں جو ہے واو پر الٹا پیش لگا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جیسے اردو میں جو ہے، اردو مشکل زبان تھوڑی اس اعتبار سے ہے کہ اس پر زیر زبر پیش نہیں لکھا ہوتا، زیر زبر پیش نہیں لکھا ہوتا ہے۔ آپ کو اسے جو ہے جملے میں کہاں استعمال ہو رہا ہے، جملے کے اعتبار سے اسے پڑھنا ہوگا، جملے کے اعتبار سے اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں بتاتے ہیں مول، تول، گول، زمین گول ہے، یہ کھول ہے، ہیں؟ زمین گول ہے تو گول نہیں پڑھیں گے، یہ گل ہے تو گاپ لام پیش گل ہوگا۔ زمین گول ہے، مول ہے، یہ مول تول بولتے ہیں، مول تول، مول بھاؤ تاؤ، جس کو بولتے ہیں بھاؤ تاؤ، مول تول، مول تول، بھاؤ تاؤ، ریٹ
जिसको बोलते हैं मोल तोल। थोड़ा मोल तोल कर लो, यानी भाव कर लो कि कैसे कितने रुपए किलो होगा, कैसे ये देगा, तो उसको बोलते हैं मोल, मोल तोल या भाव ताव। उर्दू में या बोलते हैं भाव ताव, मोल तोल। थोड़ा मोल तोल कर लेते हैं, यानी कितने रुपए किलो देगा। तो मोल हो गया कीमत, तोल हो गया किलो, तो का मोल तोल। जैसे आम कितने रुपए मोल, तो आम की का मोल तोल क्या है, आम का मोल तोल क्या है, आम का भाव ताव क्या है, आम का रेट क्या है, आम का मोल तोल क्या है, आम का रेट क्या है, आम का भाव ताव क्या है। जैसे मोल और तोल, ऐसा भाव और ताव। भाव माने कीमत, ताव माने वजन। जैसे मोल माने कीमत, तोल माने वजन। तो मोल तोल, गोल, खोल। तो ये आम का मोल है, मोल तोल है। ये जमीन गोल है, ये तकिए का खोल है। पानी घोल दो, रस घोल दो, ढोल बजाओ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इसमें झोल है, इसमें झोल है। रोक, रोक, रुक नहीं पड़ेंगे। उसे रोको, उसे मत टोको। ये कलम की नोक है, ये दीवार का ओक है। जोश, ये पानी का जोश है। ये शोर, ये लो लड़कों का शोर है। ये ये सर का नोच है, ये बर्तन का टोप है। तो मोल, तोल, गोल, खोल। पढ़ेंगे मोल, तोल, गोल, खोल। फिर घोल, ढोल, खोल, झोल। देखिए खोल ये हो गया, खोल माने तकिए का खोल हो गया बोलते हैं। और खोल मतलब खोलना, खोल मतलब खोलना। और खोल मतलब गिलाफ, खोल मतलब गिलाफ। तो खा वापस खोल आम साकिन खोल रहेगा, तो मतलब होता है गिलाफ होगा। और खा वापस खोल आम साकिन खोल रहेगा, तो यहाँ ये खोलना के माने में किसी चीज का खोलना होगा, दोनों का ये माना। झोल किसको बोलते हैं? झोल दो माना में है, मतलब किसी के अंदर कोई धोखा हो तो उसको भी झोल बोलते हैं। अब बड़ा या इसी तरह कपड़ा सिया जाए तो कहीं थोड़ा सा लटक जाए तो उसे भी झोल बोलते हैं। कहीं लटक जाए उसे भी झोल बोलते हैं। तो ये मोल, तोल, गोल, खोल। मोल, तोल, मोल, तोल, गोल, खोल। तो आप जुमले में अगर इस्तेमाल करोगे, ये आम का मोल है, ये गेहूं का तोल है, ये ये गेंद गोल है, ये तकिए का खोल है। रस, रस घोलो, ढोल मत बजाओ, दरवाजा खोलो, कपड़े में झोल मत रखो, लड़कों को रोको, बड़ों को मत टोको। कलम का नोक, ये कलम का नोक है, ये दीवार का ओक है, ये पानी का जोश है, ये चिड़ियों का शोर है, ये बालों का नोच है, ये बर्तन का टोप है। बर्तन का टोप, टोपी, टोप ऊपर वाला होते हैं, टोप बोलते हैं। तो मोल, तोल, गोल, खोल। घोल, ढोल, खोल, झोल। रोक, टोक, नोक, ओक। जोश, शोर, नोच और टोप। ये मजहूल है। ये क्या है? मजहूल है। क्या है? मजहूल है। क्या है? मजहूल है। जैसे बोना, बोना, लालू, बोना, ये क्या है? मारूफ है, मजहूल है। और अगर वो जूता
मजहूर है, मारूफ है। छोटा, ये मारूफ है। छोटा आप कहोगे तो ये मजहूल हो जाएगा। जूता अगर कहोगे तो ये मारूफ होगा। छोटा, छूटा नहीं कहोगे, छोटा। तो अगर छोटा कहोगे, छावा पे छोट ताली जोटा छोटा, जी मुआ पे जू ताली जोता जूता। जूता मारूफ है और छोटा मजहूल है। समझे ना? बोना, बोना क्या है? मारूफ है, मजहूल है। बोना क्या है? मजहूल है। और आलू, ये मारूफ है। आलू, लालू, कालू, चालू, ये सब क्या है? मारूफ है। लालू, चालू, कालू, खालू, ये सब के सब मारूफ हो गए। लेकिन बोना, धोना, रोना, बोना, धोना, रोना, ये सब क्या है? मजहूल है। ये सब क्या है? मजहूल है। लड़का रो रहा है, हमने रोया, तुम मत रोवो। तो ये जुमले में जहां इस्तेमाल होगा, जुमले से बात समझ में आएगी कि ये मारूफ है कि मजहूल है। लेकिन उर्दू जो है, पढ़ने में मुश्किल जरूर है, परेशानी जरूर होती है, लेकिन पढ़ने में जब आ जाए तो बहुत ही प्यारी जुबान है, बहुत ही शीरीं जुबान है। ये राबते की जुबान है लोगों की। तो कहा, जैसे लिखा, मोल, तोल, गोल, खोल, घोल, ढोल, खोल, झोल, रोक, टोक, नोक, ओक, जोश, शोर, नोच, टोक, ये हमने पढ़ा। आप में से भी कोई पढ़े इसे? चलिए, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। मोल, तोल, गोल, खोल, घोल, ढोल, खोल, झोल, रोक, टोक, नोक, ओक, जोश, शोर, नोच, टोक। हाँ, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, समझा। और कोई? हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, और सीखने में शर्म नहीं किया जाता। इसीलिए गालिब में सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अल्लाह रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया, इन तो कहा, इन्नल्लाह ला यस्ताही मिनल हक, अल्लाह के नबी, अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता। फिर अपना मुद्दा उन्होंने रखा, सलाम। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने उनको खींच लिया और खींच करके उनको मसला बताया, खींच करके मसला बता दिया कि उसका मसला क्या है। यानी मतलब यह है कि इल्म में शर्म नहीं होता। इसीलिए आदाबी इल्म में जो आप पढ़ोगे तो उसमें एक ये भी मिलेगा कि इल्म में जो शर्म करेगा वो इल्म कभी नहीं सीख सकेगा। इल्म में जो शर्म करेगा, सीखने में जो शर्म करेगा, कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए कभी कभार शर्म ये दरकार होती है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, गलत पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। नहीं, आप पढ़ते रहिए। गलत पढ़ेंगे, गलत पढ़ते पढ़ते तो सही हो जाएगा। कोई भी चीज आप पढ़ेंगे, कोई भी जुबान आप सीखेंगे तो जुबान में गलतियां करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे तो गलतियां दूर हो जाएंगी। और अगर शर्माते रहेंगे तो गलतियां हमेशा बाकी रहेंगी। और आपको जब भी बोलना होगा तो डाउट होगा, शक हो जाएगा कि ये गलत है या सही है, इसलिए आप बोलने से कतराओगे। इसलिए कभी भी कोई भी किताब हो, बोलने से, पढ़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए, शौक से पढ़ना चाहिए। और शौक से हम जब पढ़ेंगे, और हमारा काम यहाँ इल्म सीखना और सिखलाना, हम सब सीख और सिखला रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखला रहे हैं। जो हमारा काम सीखना और सिखलाना है, तो इस सूरत में अगर हम और आप शर्म करेंगे
तो हमें इल्म हासिल नहीं हो सकेगा। इसलिए जब भी कोई चीज कही जाए, कोई भी बात पेश की जाए, फौरन आप उसका जवाब दीजिए, फौरन आप उसको पढ़िए, फौरन आप उसको सुनाइए। ये हमारे और आप सबके लिए मुफीद है। ठीक है, चलिए कौन सा पढ़े, साहिबा पढ़ेंगी? आप लोगों ने तो नंबर लगा लिया, नाम है नहीं किसी का। मोल, तोल, गोल, जो, खोल, घोल, डोल, ढोल, होल, झोल, रोक, टोक, रोक नोक, रोक रोक। रोक, टोक, नोक, ओक, जोश, शोर, नोच, टोक। माशाल्लाह, जजाकल्लाह हसन जजा। और कोई? शेख हम पढ़े। अस्सलाम पढ़िए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मोल, तोल, गोल, घोल, घोल, ढोल, होल, झोल, रोक, टोक, नोक, ओक, जोश, शोर, नोच, टोक। हाँ माशाल्लाह, जजाकल्लाह। जैसे आप जुमला बनाइए जोश को इस्तेमाल करके। ये बच्चा भरपूर जोश से पढ़ाई करता है। और वो जोश से पढ़ाई करता है। बहुत खूब, माशाल्लाह। और ऐसे ही ये जैसे घोल, घोल है उसको उससे बनाइए। घोल जो है इससे बनाइए जुमला। अस्सलाम वालेकुम शेख। उस्ताद, घोल का मतलब क्या है? घोलना, रस घोलना बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा, नींबू का रस घोल देना। हाँ, रस घोलना मतलब किसी चीज को मिला जो है देना। निचोड़, मिला देना, निचोड़ देना, उसी का नाम है घोलना। जी रस हाँ। घोलना, नींबू का रस घोलना, शरबत बनाना, वो सब तुम्हारा काम है तमाम उसमें, तो उसी का नाम है घोलना। घोल। तो ये सबक जो है हम लोग वापेश मजहूल के आज हमने पढ़े हैं, वापेश मजहूल के हमने आज पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाव जबर के साथ, वाव जबर के साथ। यानी वाव रहेगा, वाव से पहले जैसे वहां बताया था कि वाव पर उल्टा पेश रहेगा, वाव पर उल्टा पेश रहेगा, लेकिन यहाँ वाव पर उल्टा पेश नहीं रहेगा, वाव साकिन रहेगा, वाव से पहले वाले हरफ पर जबर रहेगा। वाव से पहले वाले हरफ पर क्या रहेगा? जबर रहेगा। तो ये पढ़ेंगे ये उसको पढ़ेंगे वाव जबर के साथ, वाव जबर, यानी पर जबर नहीं रहेगा, वाव जबर के साथ मतलब वाव पर जबर नहीं, यानी उस वाव के साथ जिसके पहले वाले हरफ पर जबर होगा, उस वाव के साथ जिसके पहले वाले हरफ पर क्या होगा? जबर होगा, ये मुराद होगा। ये मतलब नहीं होगा कि आप कहोगे वाव जबर के साथ मतलब वाव पर जबर तो नहीं है, वाव पर जबर तो नहीं है। कैसे यहाँ कह रहे हैं वाव जबर के साथ? तो यहाँ वाव जबर के साथ मतलब ये कि वाव से पहले वाले हरफ पर जबर के साथ, वाव से पहले वाले हरफ पर जबर के साथ, यानी वाव से पहले वाला जो हरफ होगा उस पर जबर होगा, उस पर जबर होगा। तो जबकि वाव पेश मारूफ और वाव पेश मजहूल में हमने जो पढ़ा है, वाव से पहले वाले हरफ पर क्या है? पेश है। वाव से पहले वाले हरफ पर क्या है? पेश है। अलबत्ता मजहूल में, मारूफ में जो है वाव पर भी उल्टा पेश है,
वाव पर भी उल्टा पेश है, यानी वाव पर हरकत है जबर के उल्टा पेश की। जबकि वाव पेश मजहूल में जो है, वाव पेश मजहूल में वाव साकिन है। वाव पेश मजहूल में वाव साकिन है, वाव पर कोई हरकत नहीं है, जबर जेर पेश में से कोई हरकत नहीं, क्योंकि जबर जेर पेश को हरकत बोलते हैं। जबर जेर पेश को हरकत बोलते हैं। तो सूट में जो है सीन पर पेश है, वाव पर उल्टा पेश है। तो इस गोया की वहां सीन पर और वाव पर दोनों पर हरकत आई हुई है। लेकिन वाव पेश मजहूल जो है, इसमें वाव पर हरकत नहीं आ रही है। वाव से पहले वाले हरफ मीम पर हरकत आ रही है और पेश की हरकत आ रही है, और उस पेश की हरकत को जबर की जानिब मायल करके हम पढ़ते हैं। ऐसे ही वाव जबर के साथ जो है वाव साकिन होगा, वाव से पहले वाले हरफ पर क्या होगा, जबर होगा। वाव से पहले वाले हरफ पर क्या होगा, जबर होगा। वाव से पहले वाले हरफ पर जबर के साथ पढ़ेंगे तो वाव साकिन हो जाएगा। तो इसको इसीलिए कहा वाव जबर के साथ, वाव जबर के साथ, क्योंकि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिसमें वाव जबर के साथ आता है, वाव जबर के साथ आता है। और अगर वाव जबर के साथ है कि पढ़ने के बजाय पेश पढ़ देंगे तो मजहूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मजहूल हो जाएगा। अगर आप मौत के बजाय मौत पढ़ देंगे, फौज के बजाय फौज पढ़ देंगे, दौर के बजाय दौर पढ़ देंगे, जोर के बजाय जोर पढ़ देंगे, कौन के बजाय कौन पढ़ देंगे, कौन के बजाय कौन पढ़ देंगे, फौज के बाद फौत फौत पढ़ देंगे, मौत के बाद मौत पढ़ देंगे, खौफ के बाद खौफ पढ़ देंगे, शौक के बजाय या शौक पढ़ देंगे, जौक के बजाय जौक पढ़ देंगे, तोक के बजाय तोक पढ़ देंगे, बौना के बजाय बोना पढ़ देंगे, पौना के बजाय पोना पढ़ देंगे, खिलौना के बजाय क्या है, खिलौना पढ़ देंगे, बिछौना पढ़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये मजहूल हो जाएगा। ये क्या होगा, मजहूल हो जाएगा, ये मजहूल हो जाएगा। लेकिन जबर के अंदाज में पढ़ेंगे, जबर के अंदाज में हम पढ़ेंगे तो ऐसी सूरत में वो मारूफ रहेगा। क्या रहेगा, मारूफ रहेगा। लेकिन अगर जबर के बजाय पेश के अंदाज में हम पढ़ देंगे, पेश के अंदाज में हम पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मजहूल हो जाएगा। और मजहूल हो जाएगा तो ये पढ़ना उसका क्या होगा, गलत हो जाएगा। पढ़ना उसका क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जैसे दरिया की मौज, इंसान की फौज, लोगों का दौर, बादशाह का दौर। दौर माने जुल्म, दौर माने जमाना, दौर माने जमाना के होते हैं, और जौर के माने होते हैं जुल्म के। तो ये वाव जबर के साथ कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो वाव पेश मारूफ जो हमने पढ़ा है, जो जिनको पढ़ना आता है वो लोग जो है इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करके लिख करके भेजेंगे। और जो लोग, जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, जो लोग अभी सीख रहे हैं, वो इन्हीं अल्फाज को लिख करके भेजेंगे। इन्हीं अल्फाज को क्या करेंगे, लिख करके क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, यही काम करना है, यही काम करना है। अगर बात यही खत्म की जाती है। अगर कोई इश्काल है, कोई सवाल और जवाब है तो पूछ सकते हैं।